Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss some BCQs regarding the development of the CNS. The first BCQ: in the fourth week after conception, the neural tube develops three swellings. These are three swellings mean he wants to ask about the primary brain vesicles. These are the primary brain vesicles: prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. So the answer will be the D. So the answer will be the prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Instead of these words, he can also write the midbrain, forebrain, midbrain, and hindbrain. So this is the answer of this BCQ. Telencephalon, diencephalon, myelencephalon are not the primary brain vesicles. They are the derivatives of the primary brain vesicles. Primary brain vesicles are prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Another BCQ: the neural development begins with the rapid division of the nerve cells in a process called the process को हम क्या कहेंगे? Synaptogenesis, cell migration, differentiation, and neurogenesis. Easy question. This is answer will be the neurogenesis. Another BCQ: the myelin sheaths surrounding cranial and spinal nerves are formed by which of the following cells? These are the cranial nerves, mean peripheral. CNS के अंदर जो है वो माइलिनेशन करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पेरिफेरल नर्व्स क्योंकि लंबी होती हैं उनका कोर्स, तो इसकी वजह से उनको जो माइलिनेशन जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं कर सकते, उनके प्रोसेसेस छोटे होते हैं. देयर माइलिनेशन इज फॉर्म बाय द Schwann cell. So answer will be the Schwann cell. The pons and cerebellum. First of all, you should know where are the pons. This is the pons and cerebellum, and they are derived from metencephalon. Metencephalon is a part of hindbrain. So what is the BCQ? The pons and cerebellum are derived from the walls of the which structure? Easy. Answer will be the metencephalon. This is the my laser pointer is showing the metencephalon, which is divided into pons and cerebellum. Okay, the nucleus of the fourth cranial nerve. Before discussing this VCQ, I am going to say something about these nuclei. As we have already discussed the development of the spinal cord, these are the two alar and these are the two basal plates. The alar plate gives rise the dorsal horn of the gray matter, while the basal plate gives rise the ventral horn of the spinal cord. And इन ये तो स्पाइनल कार्ड में. अगर हमारे पास दूसरे पार्ट भी हैं कि भाई हमारे पास पॉन्स है, मेडुला है, इनमें हमारे पास सेंसरी एंड मोटर न्यूक्लिया होता है. अब आप ये याद रख लो कि ये जो एलर प्लेट है इट विल गिव राइज द सेंसरी न्यूक्लिया एंड दिस बेसल प्लेट गिव राइज द मोटर न्यूक्लिया. बहुत इंपॉर्टेंट BCQ है. यहाँ पे दिखाया गया एलर प्लेट से कौन से न्यूक्लिया बन रहे हैं? सोमेटोसेंसरी, स्पेशल विसरल सेंसरी, टेस्ट के जनरल विसरल सेंसरी, सारे सेंसरी बन रहे हैं. और जो बेजल प्लेट है उससे मोटर बन रहे हैं, जनरल विसरल मोटर, स्पेशल विसरल मोटर एंड दी सोमेटिक मोटर. अब इस BCQ को डिस्कस करते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ द फोर्थ क्रेनियल नर्व एंड एक्सक्लूसिवली मोटर नर्व which exit from the dorsum of the brainstem and innervates muscles that moves the eyeball is derived from which embryonic location? इधर आप इस BCQ में देखो, इट इज रिलेटेड विद द मोटर फंक्शन. मोटर फंक्शन के न्यूक्लियस किससे बन रहे हैं? बेजल प्लेट से. ठीक है, बेजल प्लेट तो है, लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है तो एलर वाले तो दोनों ही हट गए. बेजल प्लेट ऑफ द मेसेंसेफेलॉन, बेजल प्लेट ऑफ द डायनसेफेलॉन, इससे चुनना है. तो कैसे चुनोगे? कौन सी क्रेनियल नर्व है? फोर्थ क्रेनियल नर्व मीन ट्रोक्लियर. So we have already discussed the trochlear nerve emerge from the dorsal surface of the midbrain. What is the cavity of the midbrain? Cerebral aqueduct. So this midbrain is a part right from the mesencephalon. ये आप पीछे देखें तो ये mesencephalon है, midbrain इससे बनती है. ठीक है, उसकी कैविटी कौन सी है? Cerebral aqueduct.
So the answer will be the basal plate of the mesencephalon. और से पढ़ना है बीसीक्यू को कि चलो ठीक है एम्ब्रियोनिक कैविटी अपने मोटर से तो पकड़ लिया कि ये बेजल प्लेट से ही बनेंगे, लेकिन क्रेनियल नर्व जो निकल रही है वो किस पार्ट ऑफ द ब्रेन से निकल रही है, एम्ब्रियोलॉजिकली उसका नाम वो कहाँ से ड्राइव हुई, ठीक है। तो इस तरीके से ये बीसीक्यू एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसमें आप देखो दिस ये वेंट्रल सरफेस हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द पिरामिड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द on each side of the anterior median sulcus and this is the limiting sulcus। तो लिमिटिंग सल्कस के बाद यहाँ पे ओलिव है। बीसीक्यू क्या है, नर्व ट्रैक्ट रनिंग थ्रू दी कार्डल मेडुला डेवलप वेंट्रल टू दी सल्कस लिमिटेंस, यानी कि इस सल्कस के वेंट्रल तो आगे हमारे पास पड़ा हुआ है पिरामिड, तो इससे तो हमने अंदाज़ा लगाया पिरामिड की बात हो रही है। एंड इवेंचुअली फॉर्म दी पिरामिड्स, उसने बता भी दिया, बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ देयर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट व्हाट इज द फंक्शनल एसोसिएशन ऑफ द पिरामिड। पिरामिड से कौन से ट्रैक्ट पास हो रहे थे, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये पास हो रहा है, ठीक है, जो 90% क्रॉस करते हैं और 10% क्रॉस नहीं करते। यहाँ दीज आर द पिरामिड्स ऑफ द मेडुला। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारे पास सेंसरी नहीं है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं तो दे आर मोटर, तो आंसर क्या होगा मोटर, मीन ए। यहाँ पे ए बी सी की सीक्वेंस थोड़ा गलत लिखा हुआ है। सोमेटोसेंसरी इज ए, मोटर इज बी, विसरल सेंसरी इज द सी एंड सिंपैथेटिक इज विल बी डी। सो द आंसर इज द बी, मोटर। A young child is diagnosed with a communicating or non-obstructed hydrocephalus। Non-obstructed का मतलब है कि भाई वेंट्रिकल्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। Which of the following is the most likely cause of this condition? जब वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो फोरामेन मैनरो के भी, क्योंकि ये वेंट्रिकल का पोर्शन है जो दो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के साथ मिला रहा है उनको, ब्लॉकेज ऑफ द फोरामेन मेजेंडी, फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे फोर्थ इन दी foramen magendi is the foramen present in the median part of the fourth ventricle, यहाँ fourth होना चाहिए। Blockage of the cerebral aqueduct, cerebral aqueduct is the cavity of the midbrain, तो उसने तो ventricles के लिए ऊपर ही बता दिया non obstructive है। Blockage of the arachnoid villi, the answer will be the blockage of the arachnoid villi, ठीक है। Which of the following type of the spina bifida does not have neurological symptoms? अब स्पाइना बाइफिडा में क्या था कि जो वर्टिब्रल आर्च थी वो कंप्लीट क्लोज नहीं होती। अब ये यहाँ पे देखो इस वर्टिब्री पे गैप कम है तो ये वर्टिब्रल आर्च कंप्लीट है, यहाँ पे आप देखो गैप ज़्यादा है, वर्टिब्रल आर्च क्लोज नहीं हुई। लेकिन यहाँ से स्पाइनल कार्ड का कोई पोर्शन बाहर नहीं निकला, मेनिंजेस भी बाहर नहीं निकली, तो जिसको हमने कहा था स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। जब मेनिंजेस निकली तो हमने कहा मेनिंजोसील, उसके साथ नर्व्स निकली तो हमने कहा मेनिंजोमाइलोसील। तो इसमें से कौन से होगा जिसमें इफेक्ट्स नहीं होंगे, कोई न्यूरोलॉजी के सिम्टम्स नहीं होंगे, तो इजी है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। तो एक क्या है, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील, नो। स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोमाइलोसील, नो। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, यस, दिस इज द आंसर। So a 44 years old man present to his neurologist with an unsteady broad based gait, slow and slurred speech. Neurological examination revealed dysdiadochokinesia, intentional tremor, hypotonia and the nystagmus. These all are the symptoms related with the cerebellar disease, cerebellar syndrome. The patient lesion is in, हमने जब cerebellum मैंने पढ़ाया था तो उसमें सारी मैंने बताया था। The patient's lesion in a brain structure that is derived from which of the following embryonic structure? So cerebellum is derived from the metencephalon. So answer will be the metencephalon, that is C. A baby is born at term and is noted to have large head. Computerized large head इसका मतलब है कि hydrocephalus है। Computerized tomographic imaging shows hydrocephalus with symmetrical lateral ventricular enlargement of third ventricle. The fourth ventricle is normal. Which of the following embryonic structure contribute to the development of the obstructed part of
वेंटिकुलर सिस्टम, मैंने आपको जब वेंटिकुलर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ होगी उससे अबव पार्ट में, जो उससे बिलो वाला पार्ट होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब इसने डायलेटेशन बताई है लेटरल वेंटिकल एंड थर्ड वेंटिकल, तो दीज आर टू लेटरल वेंटिकल, दिस इज द थर्ड वेंटिकल। उससे नीचे है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, तो उससे इसका मतलब है ब्लॉकेज सेरेब्रल एक्वेडक्ट में, इसीलिए सीएसएफ नीचे नहीं आ रहा। हर वेंट्रिकल में अपना बन रहा है लेकिन सर्कुलेटर के नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे जो बनेगा वो सर्कुलेटर के सबएक्वेट स्पेस में आएगा, फिर सुपीरियर सेजाइटल साइनस से फिर एक्टिनोइड वेलाय में, फिर एब्जॉर्ब होके इधर आएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है कहाँ पे, सेरेब्रल एक्वेडक्ट में। सेरेब्रल एक्वेडक्ट इज द कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ड्राइव फ्रॉम द मेसेंसेफलम। मिड ब्रेन यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मिड ब्रेन, वेयर इज मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, it is derived from the mesencephalon. So answer will be the mesencephalon. These are the some BCQs regarding the development of the CNS. Thank you so much.